Hello, all of you. So, welcome to this Zoom session. Today, we'll discuss South America, the physical map of South America and landforms along with the Amazon River Basin. Right here in the screen, you can see South America, right? ये South America है. Over here, it is the Gulf of Mexico. अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे Gulf of Mexico है, यहाँ पे Cuba. This is Panama, and over here countries like Colombia, Venezuela, Ecuador, Brazil, Peru, then Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay. Right. So this is South America. और यहाँ पर नीचे हालांकि इस मैप में नहीं दिख रहा है बट ओवर हेयर दिस इज अंटार्कटिका. तो ये पूरा this whole region is of Antarctica. I've already discussed the mountains of South America in one of the sessions. Today I'll only discuss few landforms and the physical features of South America. रिसेंटली भी एक दो बार पूछे गए हैं वो फिजिकल फीचर्स. कुछ फीचर्स आपको शायद मालूम होंगे, कुछ फीचर्स नहीं भी मालूम होंगे. सम फीचर्स मे नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर जीएस पर से बट इम्पोर्टेंट फॉर ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शन, तो वो भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे. टू इम्पोर्टेंट रिवर्स फ्लो इन साउथ अमेरिका, वन इज अमेजोन एंड वन इज ऑर्निको. ठीक है, तो अमेजोन पेरू से निकलती है और यहाँ पर उसका डेल्टा है ओवर है, तो उसको हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे अमेजोन को. फर्स्ट लेट्स सी साउथ अमेरिका. तो पहले कुछ गल्फ को मार्क कर लेते हैं. फ्यू गल्फ्स in South America, around South America. These are the important water bodies, the peninsulas and some of the straits around South America. ठीक है, तो सबसे पहला है सबसे साउथ में which is the Drake Passage. Drake Passage is over here, right? So between the southernmost tip of South America and Antarctica, this particular strait is Drake Passage. The water body between Antarctica and South America is Drake Passage. Okay, it's a strait. Okay, distinguishing two land masses, that is a strait. Next one is Gulf of San Jorge. Right, so Gulf of San Jorge, right? This is over here. So this particular region in Argentina, which is in Atlantic Ocean, this is Gulf of San Jorge. Next is the Gulf of Pinas, right over here. The Gulf of Pinas, right? Important gulfs, but maybe ask the UPSC can ask in the geography optional, right? और हो सकता है कि GS पे भी पूछ ले, कुछ पता नहीं है. ठीक है. Now coming to the important physical features of South America. First is the Amazon River Basin. The Amazon River Basin is this one, this particular region. This whole basin, this whole region is Amazon River Basin. You will be surprised to know, although I'll discuss the Amazon River. Amazon River's basin is the largest river basin across the world. Amazon River is the most voluminous river across the world. No river is carrying that much amount of water. Although it is the second longest river in the world after Nile River, but largest river in the world in terms of basin also and in terms of the volume of water also. ठीक है. So this is Amazon River Basin. सबसे बड़ा river basin भी इसी नदी का है. ठीक है, पूरा ये Amazon का river basin है. It starts from Andes, right? ये Andes mountains है, अगर आप देख रहे हैं
ये टेरेन जो थोड़ा सा डॉटेड टेरेन है, ये एंडीज माउंटेन्स है, और यहाँ से कहीं अमेजोन रिवर पेरू से स्टार्ट होती है और उसके बाद सीधे ब्राजील में चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद लाइक दिस इट ट्रेवल्स, और यहाँ पर इज अ डेल्टा ऑफ अमेजोन, ठीक है। और बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं जो ऊपर नीचे से आके इसमें मिल रही हैं, सम ऑफ राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो वो सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। दो स्टेट्स में बहती है अमेजोन रिवर, वन इज पेरू, वन इज ब्राजील, और उसके बाद अटलांटिक में जाके डेल्टा बनाती है। द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन इज मडेरा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अमेजोन में डिस्कस कर लूंगा। नाउ one more river basin is there, that is the Ornico river basin. Ornico river basin है यहाँ पर, this is Ornico river basin, the state of Guyana, ठीक है। ये गायाना और नॉर्थ का ब्राजील एंड सम पार्ट्स ऑफ सुरिनाम, तो ये है ऑर्निको रिवर बेसिन। ऑर्निको रिवर, राइट, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हेयर इन द ईस्टर्न कॉर्डिलेरा, और उसके बाद ऐसे जाकर गायाना में ये डेल्टा बनाती है। दिस इज ऑर्निको रिवर, ठीक है। ऑर्निको रिवर के बारे में खास बात कि इस पे वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, राइट। वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल इज ऑन ऑर्निको रिवर, दैट इज एंजल फॉल्स, ठीक है, दैट इज ऑन ऑर्निको रिवर। एक और इम्पोर्टेंट रिवर है जो कि थोड़ा सा नीचे है, दैट इज पराना रिवर। इट अगेन फ्लोज इन दी अर्जेंटीना, मैं डिफरेंट कलर से दिखाऊंगा, ओके। सो पराना रिवर बेसिन अगर आप देखेंगे, सो दिस इज पराना रिवर बेसिन, ओके। पराना रिवर एक इम्पोर्टेंट रिवर है, आई विल शो यू द पाथ, राइट। सो दिस इज रिवर पराना, okay. Just remember these three rivers, although one more river is there, Magdalena, but Magdalena is not that important, तो मैगडलेना को आप याद कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं नाम, 4 रिवर्स हो जाएंगी आपकी। रिवर मैगडलेना, ठीक है, इट फ्लोज फ्रॉम पेरू टू कोलंबिया, ऐसे फ्लो करती है यहाँ पर, ठीक है, बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आप याद रखेंगे अमेजोन, ऑर्निको, पराना एंड, ओके, पराना एंड मैगडलेना, ठीक है, तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैगडलेना। अब आते हैं अपने फिजिकल फीचर्स पर। आई स्टार्ट फ्रॉम दी, ऑल्दो आई डिस्कस दी एंडीज माउंटेन्स विद यू, ये पूरा एंडीज है, जो ये टेरेन दिख रहा है आपको, डॉटेड टेरेन जो दिख रहा है, दिस इज ऑल एंडीज, ये पूरा, ठीक है। तो एंडीज को छोड़ के फर्स्ट आई विल कम टू गायाना हाईलैंड्स। Guyana Highlands. These are the Guyana Highlands. So the northern part of Brazil, this part, this, and Guyana, whole of Guyana, this, and Suriname. ये जो एरिया है, this is Guyana Highlands. Okay. So जो ग्रीन कलर से दिखाया है मैंने आपको, वो ओर्नेको रिवर बेसिन दिखाया है, और ये जो मैंने दिखाया आपको शेडेड, दैट इज गायाना हाईलैंड्स। तो ये गायाना हाईलैंड्स है। दिस इज डेंसली फॉरेस्टेड एरिया, बहुत डेंसली फॉरेस्टेड है, ओके। देन नेक्स्ट फीचर इज ब्राजीलियन हाईलैंड्स।
ब्राजीलियन हाइलैंड्स यू विल फाइंड ओवर हेयर, बिल्कुल साउथ ईस्ट ब्राजील में यू विल फाइंड ब्राजीलियन हाइलैंड्स, ओके, over here. So this is, I'll change the color of pen. Okay, ये है यहाँ पर ब्राजीलियन हाइलैंड्स। आप साथ में मैप पे मार्क करते जाइएगा if you have one. Brazilian Highlands, important Brazilian Highlands, coffee plantation, यहाँ पर स्पेशल जो कॉफी प्लांटेशन होते हैं उनको फेजेंडास बोलते हैं। ब्राजील के जो स्पेशल कॉफी जो रीजन्स हैं, सो देन इट्स रिच इन माइंस एंड कैटल ranches, जहां पर कैटल जो फीड करती है, लाइफ स्टॉक जो फीड होती है, वो यहाँ पर काफी मात्रा में मिलती है इन दी ब्राजीलियन हाइलैंड्स। कॉनिफरस फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, डेंस कॉनिफरस फॉरेस्ट, ओके, एंड सवाना लाइक ग्रासलैंड्स। भाई इफ यू कैन सी द लोकेशन, ट्रॉपिक्स के पास बैठ रहा है और ईस्टर्न साइड है कॉन्टिनेंट की, तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर रेनफॉल नहीं मिलेगा इस साइड में, सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर होगा तो ईस्टर्न साइड में आपको रेनफॉल अच्छा मिलेगा कॉन्टिनेंट के, सदर्न हेमिस्फेयर में आ गए तो ईस्टर्न साइड पर रेनफॉल कम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेनफॉल उतना नहीं होता है, सवाना लाइक ग्रासलैंड्स हैं जिनको आप कैंपोस भी बोलते हैं, ओके। सो दिस वाज द ब्राजीलियन हाइलैंड्स। उसके बाद देखते हैं बोलिवियन प्लेट्यू, ओके। तो नेक्स्ट है बोलिवियन प्लेट्यू, ठीक है। तो ओवर हेयर अगर आप देख पा रहे हैं बोलिविया, ओके। सो दिस इज, ये वाला जो मिडिल जो सेंट्रल रीजन है साउथ ऑफ बोलिविया तक जा रहा है, दिस इज बोलिवियन प्लेट्यू, ओके। नाउ बोलिवियन प्लेट्यू एक इंपॉर्टेंट प्लेट्यू क्यों है? बिकॉज इट इज a significant intermontane plateau. Intermontane plateau. What is an intermontane plateau? जो कि दोनों तरफ से माउंटेन से घिरे हो, दोनों तरफ जिसके माउंटेन्स हो और बीच में प्लेट्यू रीजन हो, दैट इज द इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, ठीक है। तो दो चेन्स हैं यहाँ पर, ये जो अपर कॉर्डिलेरा है और ये जो नीचे वाला, एक तो ये वाला जो है दैट इज द ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा एंड दिस इज ओरिएंटल कॉर्डिलेरा। तो दो मेन कॉर्डिलेरास के बीच में ये प्लेट्यू लिंक बनाती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू एंड इट हैज रिच डिपॉजिट्स ऑफ टिन, डिपॉजिट्स ऑफ टिन, ठीक है। टिन का भारी मात्रा में यहाँ पे डिपॉजिट है। देन द सेम एरिया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस रीजन में, this particular region, I'll mark this area is Mato Grosso. Mato Grosso. These are the ये तो Brazilian highlands हो गए. These Mato Grosso again are the highlands and important grasslands of Brazil. तो Brazilian highlands के अलावा Mato Grosso it's an important agricultural region और यहाँ पर जो ग्रास है वो न्यूट्रिशियस ज्यादा है, ठीक है। तो माटो ग्रासो इज एन इम्पोर्टेंट हाईलैंड अगेन, ठीक है। तो दिस इज माटो ग्रासो अगेन द एग्रीकल्चरल रीजन और रिच न्यूट्रिशियस ग्रास यहाँ पे मिलेगी। देन नेक्स्ट रीजन इज ग्रान चाको। ग्रान चाको,
just on the southeastern side of Bolivian plateau, right? Parts of Paraguay and Argentina also. This is called Gran Chaco. Okay. Gran Chaco, first of all, is a lowland. Western Paraguay, southeastern Bolivia, and parts of Argentina, north of Argentina, is Gran Chaco. ठीक है, तो ये ग्रांड चाको फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ लो लैंड. मैं यहां पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूं. दीज आर लो लैंड्स, ये हाईलैंड नहीं है, ये लो लैंड है. ठीक है. देन इट्स वार्म टेम्परेट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स. ठीक है. एंड ग्रांड चाको का मतलब होता है हंटिंग लैंड. ठीक है. द रीजन इज इंपॉर्टेंट एज अ मेन cattle rearing center because it's a grassland. Cattle rearing center है important, Gran Chaco. So locate in your map Gran Chaco. Okay. Next region is the desert of Atacama. The Atacama desert, I'll show you by a different color. I'll choose yellow. Okay. So Atacama desert is over here in Chile. Okay. This particular site मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ. अगर आप को दिख रहा है साफ साफ, अदरवाइज आई चेंज द कलर अगेन. ठीक है. तो ये जो कोस्टल चिली है, चिली अगर आप देखोगे तो चिली बहुत लंबा देश है. ये ब्रॉड नहीं है बट बिल्कुल सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है और समंदर के किनारे किनारे पूरा देश बसा हुआ है. ठीक है. तो दिस इज अटाकामा डेजर्ट, बिल्कुल कोस्टल एरिया. जो छोटा सा ये वाला जो पोर्शन है चिली का, जो ये बैंड है साउथ अमेरिका का, ये वाला जो बैंड है, यहाँ पे पूरा ये चिली का अटाकामा डेजर्ट है. सो यू कैन मार्क अटाकामा. ठीक है. इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ कोस्टल डेजर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोस्टल डेजर्ट ऑफ चिली, द मोस्ट ड्राई और ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. सबसे ज्यादा ड्राई है. रिच इन गोल्ड, भारी मात्रा में गोल्ड, कॉपर. ठीक है. सल्फर. खैर ड्राई एरियाज में यू, अगर कोस्ट के पास है और ड्राई एरिया है तो सल्फर आपको मिलेगा. ठीक है. तो ये हो गया, रिच इन गोल्ड एंड कॉपर एंड सल्फर. देन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको सॉल्ट लेक्स मिलेंगे. इन द Atacama you will find salt lakes. So these are the characteristics of Atacama. बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है किसी भी फॉरेन लैंड के इतने ज्यादा. तो जितना है उतना काफी है ये. ओके. नेक्स्ट. Okay, I'll go a little southwards, right? So, okay. Next one is the Patagonian Plateau or Patagonian Highland, जो भी आप बोलेंगे. You can call it Patagonian Plateau or Patagonian Highland. Okay, it starts from here, just like this. The southern portions of Argentina. ठीक है. So this is the Patagonian Highland. Patagonian Plateau or Highland, whatever. Okay, so
ये पैटागोनियन प्लेट्यू है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? फर्स्ट रिमेंबर, पैटागोनियन प्लेट्यू जो है वो ईस्टर्न पोर्शन है और कोस्ट को भी कवर करती है। अर्जेंटीना का जो ईस्टर्न कोस्ट है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, उस पर पैटागोनियन प्लेट्यू है। और पहली चीज इंपॉर्टेंट, इट्स अ पीडमोंट प्लेट्यू। ठीक है, तो पीडमोंट प्लेट्यूज वो प्लेट्यूज होती हैं जो माउंटेन्स के फुट पे बनती हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द पीडमोंट प्लेट्यूज। तो पीडमोंट प्लेट्यूज वो प्लेट्यूज होते हैं जो जिनके एक साइड पे देर आर माउंटेन्स और दूसरी साइड पे प्लेन सर्फेसेस होते हैं या फिर ओशंस या कोई वाटर बॉडी होती है। तो जो माउंटेन के फुट पे एकदम प्लेट्यू बनेगी और उसके आगे फिर या तो कोई प्लेन सरफेस होगा या फिर उसके आगे कोई वाटर बॉडी होगी, तो उसको आप पीडमोंट प्लेट्यू बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये ईस्टर्न साइड पे ये पीडमोंट प्लेट्यू है, जिसके ईस्टर्न साइड पे आप देख रहे हो अर्जेंटीना के, तो ये ओशन है पूरा। तो यहाँ प्लेट्यू, उसके पहले वेस्टर्न साइड पे माउंटेन्स और ईस्टर्न साइड पे पूरा अटलांटिक ओशन। ठीक है। अगेन द ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर कैटल। ओके, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री यहाँ पर वुलन टेक्सटाइल है। यहाँ पर शीप रेयरिंग बहुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेड कलर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द Pampas of Argentina. These are the grasslands of Argentina, which are called Pampas. Okay, these are grasslands, and importantly, these are temperate grasslands. Okay, I'll write temperate. Temperate grasslands, and one very important thing is कि यहाँ पर पूरे grassland में बहुत दूरी तक you'll find monotony. Okay, same type of grass is for for the large area that is covered by the same type of grass, so certain monotony is there in this type of grassland, that is pampas. ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा छोटा ही दिखाया है, बल्कि और बड़े हैं। 20% एरिया जो है वो अर्जेंटीना का इज इन दी pampas, right? So it's the greatest agricultural regions for agricultural regions, grain, and major industry is the beef industry. Okay, beef industry. एक important घास यहाँ पे होती है, that is alfalfa, a nutritious grass, alfalfa. Uruguay here is an important country. If you see, it's Uruguay. The first football World Cup was played in Uruguay, the capital city of Montevideo. पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप यहीं खेला गया था, in Montevideo. And one lake is Lake Popo. It's in the Bolivian highlands over here. Lake Popo. ठीक है, so it's in Bolivia. ठीक है,
जो इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू मैंने आपको बताई थी, ओके, the intermontane plateau, it's in Bolivia it's also called, the intermontane plateau is the altiplano, तो intermontane plateau को भी आप altiplano भी बोलते हैं. Okay, so I must write intermontane plateau. Altiplano. So many of you must be knowing it. Okay. So this was the physical features. और उसके बाद आते हैं Amazon River पे. Okay, a big one, एक बहुत बड़ी नदी, और स्टार्ट हो रही है, अगर आप देख पाओगे यहाँ से, जस्ट ये वाला जो एरिया है, इसके दो मेन कॉन्फ्लुएंसिंग रिवर्स हैं जो मिलकर अमेज़न बनाती हैं. इट्स इन पेरू. पेरू में जो एंडीज माउंटेन से स्टार्ट हो रही है. तो अगर आप देख रहे हो तो ये दो नदियां हैं, वन इज उकायाली एंड वन इज हुआलागा, राइट. सो बोथ दीज रिवर्स मीट एंड मेक अमेज़न. अमेज़न जो अपर पोर्शन है अमेज़न का, यहाँ से स्टार्ट होती है अमेज़न, और उसके बाद फ्लो करती है ब्राजील में, और ब्राजील में एक इंपॉर्टेंट शहर है, द लार्जेस्ट सिटी ऑन अमेज़न इज मनाउ, राइट. सो दिस मनाउस सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी ऑन अमेज़न ओवर हियर इन ब्राजील. मनाउस से पहले, और इसका जो सोर्स है वहां तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ पे अमेज़न को डिफरेंट नेम दिया गया है. इन ब्राजील इट इज कॉल्ड सोलीमो, सोलीमोस, ओके, राइट. तो यहाँ से यहाँ तक पहले इसको सलीमोस बोलते हैं, और मनाउस के बाद इसका नाम जो लिया जाता है वो अमेज़न लिया जाता है. बट अगर आप गूगल में देखेंगे, मैप में भी सर्च करेंगे, तो आपको पूरा यहाँ से अमेज़न ही दिखेगा, अमेज़न नाम ही दिखेगा उसका. बट एक्चुअली इन ब्राजील इट इज कॉल्ड सोलीमोस बिफोर मनाउस. यहाँ से बाद इसको अमेज़न का नाम दिया जाता है, राइट. सो द डेल्टा इज ओवर इन द अटलांटिक ओशन. और डेल्टा इंपॉर्टेंट क्यों? डेल्टा इज ऑन इक्वेटर ऑल्सो. डेल्टा के ऊपर से इक्वेटर पास कर रहा है, अमेज़न रिवर के डेल्टा के ऊपर से, राइट. सो इक्वेटर लाइक दिस, इट पासेस थ्रू इक्वाडोर, राइट. तो इक्वेटर के ऊपर इसका डेल्टा है. अगर आप ड्रेनेज बेसिन देख पा रहे हैं, तो सच अ लार्ज ड्रेनेज बेसिन इज देयर. पूरा जो डार्क ग्रीन कलर से है, ये पूरा अमेज़न का ड्रेनेज बेसिन है, राइट. ठीक है. तो दिस रीजन बोलिविया को भी टच कर रहा है ड्रेनेज बेसिन, पेरू, तो इक्वाडोर, कोलंबिया, even Guyana and Brazil. So such a large drainage basin. This one is the largest tributary of Amazon, Madeira. यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देख पा रहे हो कि Madeira is meeting Amazon after Manaus. Important चीज कि मनाउस के बाद अमेज़न बहुत ही डर्टी रिवर हो जाती है. डर्टी इन द सेंस मडी हो जाती है, नॉट डर्टी, आई से मडी. ठीक है. ये रिवर एकदम काली नजर आने लगती है, काफी सेडिमेंट्स के साथ आती है, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. व्हाई? बिकॉज द परपेचुअल रेनफॉल इन द एंडीज माउंटेन्स, बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस टू इक्वेटर. तो काफी पानी इस रीजन में गिरता है, जिसकी वजह से इस रिवर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है पानी का, और काफी पानी लेकर आती है, और हैवी सेडिमेंटेशन करती हुई आती है माउंटेन्स में, हाईलैंड्स में, खास करके एंडीज के जो ईस्टर्न कॉर्डिलेराज हैं यहाँ पर ओवर हेयर. तो उसके बाद जब ये मनाउस पहुंचती है, तो काफी सेडिमेंट्स लेकर आती है. रिवर मियांडरिंग भी बहुत करती है. अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे इस रिवर के पाथ को, तो बहुत ज्यादा मियांडरिंग करती है, लाइक दिस मियांडर करती है रिवर अमेज़न. तो मियांडरिंग काफी करती है. डेल्टा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, राइट, क्योंकि मनाउस के बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर कम दिखने लगता है. कम क्यों दिखने लगता है? बिकॉज सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा है, पानी की डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए फ्लो ऑफ वाटर उतना नहीं मालूम पड़ता है, और रिवर की जो स्पीड होती है वो भी स्लो हो जाती है. ठीक है. तो अमेज़न रिवर की स्पीड स्लोज डाउन आफ्टर मनाउस, तो उतना ज्यादा हैवी डेल्टा फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ द लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर इट टेक्स, इट कैरी टिल्स अटलांटिक. ओके. सो दिस इज रिवर अमेज़न. ठीक है. बहुत डेंस रेन फॉरेस्ट है अमेज़न के ऊपर, राइट, ओवर हेयर, राइट. Many dense national parks are there, बहुत ही densely forested areas Amazon के ऊपर. And that's
क्वाइट मच अबाउट अमेजोन यूपीएससी के अगर संदर्भ में देखा जाए तो. सो दैट्स इट. गुड नाइट, टेक केयर.